Today's our novel lineage will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Olexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. विश्व भर के दर्शकों, सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर यहाँ विवेकवान वंशावली में आपका स्वागत है। आज हम शांति प्रेमी जैन धर्म की अपनी यात्रा अशोक संघवी और शिकागो के जैन समाज के सम्मानित सदस्यों के साथ अपने ज्ञानी मार्गदर्शक के रूप में 2 भाग वाले कार्यक्रम के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। घनी परंपराओं और प्राचीन ज्ञान से भरा जैन धर्म एक मोहक और अनंत धर्म जो आज भी उतना ही उचित है जितना लगभग 5000 वर्ष पूर्व अपनी उत्पत्ति के समय था। हम इसकी खोज को जारी रखते हैं। जैनवाद की जड़ें प्राचीन भारत में 24 तीर्थंकरों, गुरु या पैगंबर की परंपरा से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक तीर्थंकर ने जैन दर्शन की समान शिक्षा दी है, अपने समय के युग और संस्कृति के अनुकूल। महावीर यानी महान नायक लगभग 550 ईसा पूर्व पैदा हुए, जो आखिरी तीर्थंकर थे। Jainas believe there is a cycle, time cycle. So there are 24 masters or scholars. They take birth in one cycle, time cycle. And that time cycle, those 24 masters or the scholars, they go into within, they become absolute, pure, unconditional love, and they know they're everything to know. It's called Kaivalya. It's called absolute truth and nothing but truth. And that's the state of mind where you become one with the universe. All energy, every being becomes part of you. So Mahavir was the 24th scholar or a Tirthankara or the master or Messiah in our cycle. इस शुद्ध धर्म की शिक्षा और अभ्यास का केंद्र अहिंसा का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ है अहिंसा या जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इसमें दूसरों के प्रति नियत और बिना नियत के दिया नुकसान दोनों ही शामिल है। जैनियों के लिए अहिंसा का सिद्धांत ना मारने के विचार से अधिक परे जाता है। इसमें दूसरे लोगों का वाणी या विचार द्वारा अपमान ना करना शामिल है। इस कारण से जैन अभ्यासी सदैव अपने विचारों के प्रति सावधान रहते हैं कि दूसरों को कोई अप्रत्यक्ष नुकसान ना पहुंचे। I'll give an example of non-violence. If somebody, you can hurt or you can be violent either by your act, by your words, or even thinking about that person, because your thoughts are so powerful. You create so much energy and creates waves that other person gets to know it. So sometimes it says, before you reach me, your energy reaches me, and that's the power of non-violence. And nowadays quantum physicists say and quantum physics say everything is energy. And that's what was told by Mahavira before 2500 years ago, that everything is energy. There are only 2 basic energy. One is you, that's your soul energy, your spiritual energy. Other one is material energy. So your soul energy can attract different things into your life, and you can get rid of those things. So that's the non-violence, and compassion creates more and more love, unconditional love. There are lots of places in India nowadays. They have charitable hospitals. They have shelters for animal. It's just run on charities, and so that's the power. अहिंसा के इस विचार का हमेशा पालन करते हुए जैनी क्षमाशीलता, सहनशीलता का अभ्यास करते हैं और दूसरे लोगों की मान्यताओं, धर्म और विचारों का खुले मन से सम्मान करते हैं। And I live my life, though I'm not a Christian. Many principles I studied with Bible, Quran. Every master has taught one simple thing: unconditional love and compassion. And that's what Mahavir taught. जीवन के सभी रूपों के प्रति प्रेममयी सम्मान और करुणा रखते हुए जैन अभ्यासी कठोर शाकाहारी होते हैं। साथ ही पशुओं को खाने से परे रहते हैं। जैन जड़ वाली सब्जियां खाने की भी उपेक्षा करते हैं, जैसे आलू, सलजम, प्याज, गाजर और मूली। यह इसलिए है कि इन सब्जियों को लेने में
पौधा जड़ से उखड़ जाता है और इस प्रकार उसके प्राकृतिक जीवन चक्र का अंत पहले ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त जड़ वाली सब्जी मिट्टी से जुड़ी होती है और दूसरे सब्जियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म जीवाणुओं से भरी होती है। जैन सभी जीवन रूपों की पवित्रता में विश्वास करते हैं, उनके प्रति भी जो आंखों से अदृश्य होते हैं। पौधे के फल, बीज और पत्तियां खाना स्वीकार्य है क्योंकि वह दूसरे जीवन रूपों को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है और पौधे को अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए जीवित और स्वस्थ छोड़ देता है। And that's the reason many giants follow vegetarianism. They don't kill even the smallest thing. पूजा और विधान जैन अभ्यासी के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अधिकांश जैनी अपनी सार्वभौमिक प्रार्थना या नवकार मंत्र जपने के लिए प्रतिदिन झुकते हैं। इस मंत्र के जाप में भक्त उन मुक्त आत्माओं के सम्मान में झुकता है जो अब भी मानव रूप में अरिहंस, पूर्ण मुक्त आत्मा, सिद्ध, आध्यात्मिक शिक्षक, आचार्य, शिक्षक, उपाध्याय और सभी भिक्षुओं, सर्व साधु और भिक्षुणी साध्वी के रूप में मौजूद है। भारी सम्मान की इस भाव द्वारा जैनी इन उच्च आध्यात्मिक उन्नत जीवों की मुक्ति, सच्चे सुख या निर्वाण के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर के पथ के अनुसरण के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। यह पूजन और आभार की प्रार्थना है जिसमें भक्त खुद के लिए भौतिक लाभ या समर्थन प्राप्ति की मांग नहीं करता है। जैन परंपरा के खूबसूरत प्रार्थनाओं और विधानों में अष्ट प्राकृ पूजा या 8 सांकेतिक भेंट प्रार्थना शामिल होती है। ये 8 भेंटों में शामिल है जल, जो भक्तों को ईमानदारी, सत्य, प्रेम और सभी जीवों के प्रति करुणा के साथ जीवन जीने की याद दिलाता है। चंदन की लकड़ी, जिससे भक्त विभिन्न पक्षों से वास्तविकता की स्पष्ट और उचित समझ के साथ साथ ज्ञान को परिलक्षित करता है। फूल भक्त को याद दिलाने के लिए कि आचरण एक फूल की तरह होना चाहिए जो सभी जीवों को बिना भेदभाव के सुंदरता और खुशबू प्रदान करता है। दीपक शुद्ध चेतना या बिना किसी कार्मिक बंधन वाली आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और भक्त को मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 बड़ी प्रतिज्ञाओं के पालन की याद दिलाता है। अगरबत्ती, जो दूसरों को खुशबू प्रदान करती है और भक्त को दूसरे के लाभ के लिए जीवन जीने की याद दिलाती है, जो राह अंततः मुक्ति की ओर ले जाती है। चावल, इस प्रार्थना से भक्त इस जीवन में मुक्ति पाने के लिए सभी प्रयत्न करता है। फल मोक्ष या मुक्ति के प्रतीक है और भक्त को बिना किसी अपेक्षा के कर्तव्य निभाने और सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणामयी होने की याद दिलाता है। घर में बनी मिठाई, इस प्रार्थना से भक्त लगाव कम करने या दूर करने का प्रयत्न करता है। जैनियों के लिए वर्ष का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिवाली या प्रकाश का रंगीन उत्सव है। इस उत्सव पर उस दिन की वर्षगांठ मनाते हैं जब अंतिम तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। यह महावीर की शिक्षाओं पर ध्यान देते हुए पवित्र वचन और साधना का समय होता है। दूसरे दिन नव वर्ष का उत्सव और समारोह मनाया जाता है। Hare
ये कहा गया है कि दिवाली या दीपक उत्सव के नाम की उत्पत्ति उत्तरी भारत के 18 राजाओं से हुई, जिन्होंने निर्णय किया कि उनके गुरु के ज्ञान का प्रकाश दीपक जलाकर सांकेतिक रूप से जीवित रखा जाएगा। हम महानगर शिकागो के जैन समाज के सम्मानित सदस्यों द्वारा जैन परंपरा के खूबसूरत विधानों में तथा ज्ञान और शुद्धता में हिस्सा लेने के लिए हमें आमंत्रित करने के लिए आभारी है। दयालु दर्शकों, आज आपके साथ के लिए आपको धन्यवाद। अगला कार्यक्रम है गुरु और शिष्यों के मध्य। आशा है शांति प्रेमी जैनियों की सज्जन आत्मा हमारे साथ बनी रहे और हमारे दिनों को सभी जीवों की पवित्रता, खूबसूरती और भव्यता के प्रति सम्मान से कृपामयी करे। Gracious viewers, thank you for your company today. Up next is between Master and Disciples. May the gentle spirit of the peace-loving Jains remain with us and bless our days with renewed respect for the beauty, magnificence and sanctity of all life. For more details, please visit www.suprememastertv.com/NL.